Hello everybody. I am Sakshi from YouTube channel Study with Sakshi Gaur. So, in this video, we are going to know about chapter 5th, which is the fundamental unit of life, grade 9. Okay, so can we start the topic now? So, here are the key concepts for this chapter, which is the study of discovery of cell, which the rating of which is 5 stars. Study of microscope, 2 stars. Isotonic, hypertonic solution, 4 stars. Cell wall, 3 stars. Nucleus, 5 stars. 3 stars and 5 stars. So 5 stars वाले टॉपिक कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला. सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस एंड cell discovery. So these 3 topics are like your main topics that you have to like learn it, that you have to read it, learn it. So yes, let us start with the discovery of cell. So let us start with it. All the living organisms are made up of the fundamental unit of life, which is known as cell. So we can also say cell is the structural and functional unit of life, or cell is the basic unit of life. So cell is the Latin word for little room. There was one scientist who was Sir Robert Hooke. Wait a minute. Which was Sir Robert Hooke, who saw a little room in a structure of cork, which is a part of bark of a tree, which resembled like the structure of a honeycomb. And the use of the word cell is described to these units used still in today's day of biology, the cell biology. So what was there? It was a chance discovery by Robert Hooke, of course, in 1665. The year is not mentioned here, but in 1665, that a thin slice of cork is a part of a bark of a tree. Yes, that is a part of a bark of a tree, and contained a number of very small boxes. So they saw these structures like that, which have a small thing in nucleus, we can say. He named them celluli. Firstly, he named them celluli, not cell. He may name them celluli for the plural and cellula for the singular, which meant little rooms. But later on, we call them cells. So Robert Hooke's discovery was important because it indicated for the first time that living organisms consisted of a number of small structures or units. So I think the first line is clear to you all. Third line. The compound microscope consists eyepiece, objective lens and condenser to observe a cell, putting a drop of saffron. Saffron is used in the plant cell and it gives a color to observe the structures of animal and a plant cell or any type of cells. Methylene blue for animal cell. Okay.
So please refer to figure 5.1 of compound microscope in your NCERT book. So जब ये मेरी वन शॉट वीडियो रहेगी, ये मेरी वन शॉट वीडियो में I already uploaded three parts of this video. So if you haven't watched, please watch that parts, and it will be like a overview of the chapter because I already completed the chapter before. So let us start. So we use safranin for plant cell and methylene blue for animal cell. Scientist Leeuwenhoek observed free living cells, which was protozoan in the pond water for the first time. Robert Hooke saw dead cell. He saw dead cell, but this scientist saw a living cell. The Robert Brown observed the nucleus in the cell. He discovered the nucleus in the cell and named them. So what is it? It is a cell, and here is the nucleus, and Robert Brown named it. Robert Brown. The cell theory. Now we are going to talk about cell theory. States that all the plants and animals are composed of cells, and it was proposed by Skeldon and Swan. But the cell theory was later expanded by our scientist, which was Virchow, Robert Virchow. He told that all cells arise from pre-existing cells. That all the cells arise from pre-existing cells. सो पुरकिंजे के बारे में भी आपने सुना होगा. ही टर्म द प्रोटोप्लाज्म. आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल. So sorry for that. Please wait. Yes, we are on this part. So point number 9. All cells differ in size, shape, structure. So please refer to figure 5.2 and 5.3. I already told you that you have to open your book. Please open your book. Types of cells कौन से दिखाए हैं? Onion cells, smooth muscle cells, bone cells, fat cells, nerve cells, ovum, sperm, etc. Each kind of cell performs specific function. Specific function वाली line को please underline it. Please underline that specific function wali line. So if you're making notes also, so please write these points in your notes. Please add these points in your personal notes that you are making. Please wait a minute. Yes. So now we are going to talk about hypertonic solution, hypotonic solution, and isotonic solution. So can we start with it, everyone? Can we start with it? Can we start with hypotonic, isotonic, and hypertonic solution? So yes, we are going to start. Let us start the video. हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक मतलब सेल अपने अंदर पानी ले लेगा. कहाँ से जाता है पानी? ऑस्मोसिस याद हो रही है ना? ऑस्मोसिस पढ़ाया था मैंने, फुल वीडियो में पढ़ाया था मैंने ऑस्मोसिस के बारे में. ऑस्मोसिस में क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा? सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा और बाहर का पानी कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा. जिससे सेल क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा.
हाइपो को कैसे याद रख सकते हैं? हिप्पो, हिप्पो हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? पानी बाहर भी जाता है और अंदर भी आता है, पानी बाहर भी जाएगा और अंदर भी आएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि बाहर हायर कंसंट्रेशन होता है और अंदर लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो क्या होता है? पानी बाहर निकलना शुरू कर देता है। सो आई होप दैट इज क्लियर। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। सो लेट अस कैन वी स्टार्ट। Let me erase that all. So let us start with cell also, yeah. So please listen it carefully. Listen, I think one slide is missing here, everyone. Let me watch that slide. That which slide is missing? Please wait a minute, please, everyone. I think one slide is missing here. One slide is not here. So 18, 19. Oh my god, what is happening? 18, 19, 20, 21. Oh my god. I think 2-4 points are missing here. Oh, it's okay, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक ना मिस हो गया है, मतलब इस स्लाइड में नहीं आया, इसमें नहीं आया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक। सो व्हाट कैन वी डू नाउ? कोई बात नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक आप वीडियो में देख लीजिए, या फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो उनसी कुछ चीज़ों को बाहर आने देती है और कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है। ये एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है सेल को। किससे बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड्स कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इतना बहुत है, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सेल वॉल के बारे में एक्सोसाइटोसिस, ओ माय गॉड, एंड आपकी बुक में एंडोसाइटोसिस लिखा हुआ है, उसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है। क्या होता है कि अमीबा कैसा, अमीबा इस तरह का कोई भी है, कुछ भी, अगर आपकी ड्राइंग गंदी से गंदी है ना, आप तभी अमीबा तो बना सकते हो। आप कुछ ऐसे से बना दो, ऐसे से बना दो, कुछ भी बना दो, अमीबा का इरेगुलर शेप होती है। क्या होता है कि उसकी सेल वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन है ना, वो फूड को एनगल्फ कर लेती है। इसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस जब वो फूड एनगल्फ करती है, और जब वो बाहर फेंकती है फूड को, उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब बात कर लेते हैं हम सेल वॉल की। सेल वॉल एक रिजिड सब्सटेंस होती है जो उनसी सेलुलोज से बनी होती है, और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। जब कोई भी लिविंग प्लांट सेल या एनिमल, कोई भी सेल जिसके पास सेल वॉल है, वो वाटर को लॉस करती है, उनके कंटेंट्स में ना श्रिंकेज हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? हियर इज योर आंसर। When the cell wall permits the cell of plants, fungi and bacteria withstand to very dilute hypotonic solution, external media without bursting out. So I hope it is clear. So students, आपको अगर टॉपिक को ना आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप what can you do? You can do कि आप जाइए हमारी वीडियोस में, जौन सी वीडियोस में मैंने पूरा अच्छी तरह से सारा पढ़ाया हुआ है, चैप्टर 3-4 पार्ट हैं, वो आप देख लीजिए, फिर आप आइए यहाँ पे। वी ऑल्सो हैव क्वेश्चन बैंक्स ऑल्सो, सो यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस बैंक। ओके, सो कैन वी स्टार्ट नाउ। न्यूक्लियस के बारे में मैंने बहुत अच्छा बताया था, डायग्राम वगैरह, एक एक पॉइंट में मैंने डायग्राम बनाई, एक एक पॉइंट में मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया है।
ये डार्क कलर स्ट्रक्चर होता है जो सा स्फेरिकल, ओवल, कोई भी टाइप डॉट लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिख सकता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये सेंट्रल रोल प्रोवाइड करता है ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ में। क्रोमेटिन मटेरियल इसके अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं और वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं जब सेल को डिवाइड होना होता है। तो ये डीएनए भी कंटेन करते हैं जिसको डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो और ये डीएनए कुछ इस तरह के होते हैं और इनका एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। जीन्स बोलते हैं हम इन्हें। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। द ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। सो कैन वी स्टेट द डिफरेंस between prokaryotic cells and eukaryotic cells? Yes, we can. So let us do. So this line is for prokaryotes and this line is for eukaryotes. Size इनका generally 1 to 10 मिलीमीटर होता है और इनका साइज 5 to 500 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट इनका न्यूक्लियर रीजन वन डिफाइंड नहीं होता, इनका वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। सिंगल मोर देन वन क्रोमोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट और यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ये अच्छे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा। जैसे साइनोबैक्टीरिया, इस तरह से कुछ आपके एग्जांपल्स हैं। फंगाई, बैक प्लांट सेल, एनिमल सेल, जो भी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स। Cell organelles. So let us start with it. So first is endoplasmic reticulum. So दो तरह के होते हैं, RER एंड SCR। RER रफ होते हैं क्योंकि उन पर राइबोसोम्स होते हैं और SCR स्मूथ होते हैं क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते और वो लिपिड्स बनाते हैं, फैट्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और RER बनाते हैं प्रोटीन्स। सो ये हेल्प करते हैं SER फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। SER डिटॉक्सिफाई करता है टॉक्सिन्स को। ER एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स हेल्प इन बायोजीनेसिस। जिसको बायोजीनेसिस का मतलब नहीं पता, मेम्ब्रेन को बनाना। मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। तो उनका बनना, उन मेम्ब्रेन का बनाना, उनको कहते हैं, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए बताइए, प्रोसेस का नाम पढ़ाया हुआ है मैंने, जिसने वीडियो देखी उसको तो पता होगा। मेम्ब्रेन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन बायोजीनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजीनेसिस। गोल्गी, कैमिलो गोल्गी ने फाउंड किया था। ये वेसिकल से बना था जिसको कहते हैं सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर किसी को याद हो तो। ये इसका काम इतना कुछ होता नहीं है, स्टोरेज वगैरह ही करता है, अपना पैक करके भेज देता है। और ये लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम का नाम से याद आया भाई, सुसाइडल बैग्स होते हैं ये। तो अगर कोई भी और आपका फोर्जन सेल आ जाता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाए ना, फट जाते हैं और इनके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल को खा जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। और इनको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो उसको भूल ही नहीं सकते। माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो ये आपके हैं माइटोकॉन्ड्रिया अंकल। माइटोकॉन्ड्रिया अंकल, नमस्ते करो अंकल को। हाँ करते हैं, अंकल जी हैं आपके। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, ये पोरस होती है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। और ये एनर्जी कंसिव ऑफ द सेल कौन सा होता है भाई? ATP। भूल गए क्या? उसको वो ये बनाती है। पावर हाउस ऑफ द सेल भी होती है ये। माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसके खुद के जीन्स, उसके खुद के DNA और उसका राइबोसोम्स होता है और वो
अपने प्रोटीन्स भी बनाती है, प्रोटीन्स भी बनाती है। सो कितना क्लियर हो गया होगा? हाँ जी जी, प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड एक तो रह गया, कौन सा रह गया बताइए? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं? जो उनसे डिफरेंट कलर देते हैं। रेड, लाल टमाटर बड़ा मज़ेदार, रेड एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज, ऑरेंज कलर का ऑरेंज, येलो मैंगो, इस तरह से वो कलर देती है। क्लोरोप्लास्ट उसमें कौन से होते हैं? जो ग्रीन पिगमेंट के होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो वाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, और ये कवर डबल लेयर्ड होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं, और उनके मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और प्लास्टिड्स उनका खुद का डीएनए, राइबोसोम्स, और वो उनके पास खुद की मशीनरी, प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ वो बना लेते हैं भाई। इस पर निर्भर नहीं रहते, वो निर्भर नहीं रहना उन्हें, उनको खुद पे डिपेंडेंट, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, इंडिपेंडेंट चलते हैं वो। हाँ जी, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये सेल सैप इसमें एक होता है, और ये जनरली स्मॉल साइज में होते हैं एनिमल में, लार्ज साइज में होते हैं प्लांट में। ये 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को ये पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, हिस्से में कर लेते हैं, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे सेल को। अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स इन मैक्यूल में हम स्टोर कर देते हैं। सो सॉरी फॉर दैट। इन अमीबा, फूड वैक्यूल इज स्पेशलाइज्ड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अमीबा के बारे में सबको पता होगा। फूड वैक्यूल होता है, स्टोर करता है, खा खू लिया उसने, बाहर फेंक दिया, बस इतने ही काम होता है। हाँ जी, चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर तो हो गया हमारा ख़त्म। सेल की डेफिनेशन लास्ट में डाल रखी है। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? चैप्टर ख़त्म हो गया और सेल की डेफिनेशन बिल्कुल एंड में डाल रखी है। सेल इज़ द fundamental unit of living organism, help in respiration, obtaining nutrition and clearing the waste and forming new protein. मेन टॉपिक तो रह गया। मेन टॉपिक आप कहोगे कौन सा मेन टॉपिक रह गया? मेन टॉपिक भी भूल गया। क्वेश्चन बैंक एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड अ प्लांट सेल। एनिमल सेल, प्लांट सेल। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, और ये अकेली होती है। सेल वॉल इसके आउटर लेयर होती है, और रिजिडिटी, टर्जिडिटी दोनों प्रोवाइड करती है। वैक्यूल स्मॉल होते हैं, या फिर होते ही नहीं, या फिर स्मॉल होते हैं, बिग होते हैं। वैक्यूल्स बिग होते हैं प्लांट सेल में। प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। आपने देखा है ग्रीन कलर का ह्यूमन? नहीं देखा होगा। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इस तरह से सेंटर में, और ये तो साइड में होता है, क्योंकि इतना तो जगह हमारा वैक्यूल ही ले लेता है भाई साहब, तो ये बिल्कुल साइड में चले जाते हैं। What happened? So are you ready for all? Are you ready for question bank everyone? I hope so that you all are ready. चैप्टर पढ़ा है तो आता होगा, चैप्टर पढ़ा है तो आता होगा, नहीं तो बस वीडियो भी देख लेना तो भी आपको आता होगा। अगर ये वीडियो भी अच्छी तरह से देखी है ना तो भी आपको आता ही होगा। अगर आपने ये वीडियो भी देखी है ना तो आपको अच्छी तरह से वो आता होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन 1।